ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ ترکیہ صدر رجب طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں مسئلہ کشمیر اٹھایا۔ کہا ہند پاک کے درمیان بات چیت اور تعاون سے ہی منصفانہ اور دیر پا امن کا ہوگا قیام۔ جموں کشمیر میں پچھلے 10 روز سے محکمہ بجلی کے مستقل و عارضی ملازمین سراپا احتجاج، تنخواہیں واگزار کرنے اور عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کی مانگ۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے تحصیل آفس راجپورہ کا کیا دورہ، ڈیجیٹل خدمات کا لیا جائزہ۔ اور رفیع آباد کے خوبصورت علاقے لودھو میں سمر فیسٹیول پروگرام کا انعقاد، مہمان خصوصی کے طور پر ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے کی شرکت۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا۔ اردوغان نے کہا کہ ایک اور پیش رفت جو جنوبی ایشیا میں علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کی راہ ہموار کرے گی، وہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت اور تعاون کے ذریعے کشمیر میں منصفانہ اور دیر پا امن کا قیام ہے۔ ان کا یہ تبصرہ نئی دہلی میں G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد آیا ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 10 روز سے محکمہ بجلی کے مستقل و عارضی ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ محکمے کے ملازمین اپنی مانگوں کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ جی پی فنڈ اور عارضی ملازمین کی مستقلی کو بھی انجام نہیں دیا جا رہا ہے، جس پر وہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرہ جموں کشمیر الیکٹرک امپلائیز یونین کے بینر تلے منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر محمد ایوب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک محکمے میں کام کرنے والے سبھی مستقل و عارضی ملازمین کی تنخواہوں کو واگزار نہیں کیا جاتا، تب تک احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت پر تنخواہیں اور دیگر فنڈز کو واگزار نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر محمد یوسف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جموں کشمیر میں محکمے کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں، لیکن اگر جلدی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو ہم کام چھوڑ ہڑتال پر جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ ہماری تنخواہ ابھی تک یہ واگزار نہیں کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تنخواہ ہے یہ تھرو پیسز تھرو آ جائے، تھرو بجٹری سپورٹ، لیکن بدقسمتی سے گرانٹ اینڈ ایڈ ہمیں دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور سب سے اہم مسئلہ ہے یہ ہمارا جو تنخواہ ہے۔ ہمارے جو جی بی فنڈز ہے وہ ابھی 5-6 مہینوں سے بند پڑے ہیں، اور ڈیلی ویجروں کی مستقلی وہ ابھی تک نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ ریڑھ کی ہڈی ہے ڈیلی ویجر اس ڈپارٹمنٹ میں۔ جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ بھی کیا ہے، اور معاہدے کے باوجود بھی انہوں نے امپلیمنٹ گراؤنڈ پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ آرڈر۔ ابھی ہم کام چھوڑ ہڑتال نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم صرف احتجاج کر رہے ہیں، یہ ریاست گیر احتجاج ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ لگے کہ گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو پا رہی ہے، وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر پا رہی ہے، تو ہم کام چھوڑ ہڑتال پر بھی جائیں گے۔ پہلے جو ہے ہماری ڈیمانڈ وہ تنخواہ ہے، ہماری تنخواہ ابھی تک یہ واگزار نہیں کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے تحصیل آفس راجپورہ کا دورہ کر کے یہاں ڈیجیٹل خدمات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے تحصیل آفس راجپورہ کا دورہ کرتے ہوئے دفتر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے آن لائن خدمات کو بہتر بنانے اور سرکاری کاموں کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے انتظامیہ کی لگن کی ستائش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل آفس راجپورہ کا جامع معائنہ کیا، جہاں انہوں نے دفتر کے کام کے مختلف پہلوؤں پر باریکی سے توجہ دی۔ اس دورے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ دفتر مقامی کمیونٹی کی ابھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار رہے۔
ریونیو سسٹم میں درستگی اور کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے ریونیو دستاویزات اور ریکارڈ سمیت تمام سیکشنز کا انہوں نے مکمل جائزہ لیا۔ شکایت کے ازالے کے طریقہ کار کی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ شہریوں کے تحفظات اور شکایات پر رد عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ تحصیل آفس کے اندر مختلف حصوں کا معائنہ کرنے کا مقصد انتظامی عمل کو بہتر بنانے اور ہموار کرنے کے لیے علاقوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے سرکاری خدمات کو جدید بنانے اور انہیں زیادہ شہری مرکز بنانے کے لیے انتظامیہ کے عزم پر زور دیا۔ ایک ایسے دور میں جہاں ڈیجیٹل رسائی گورننس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، انتظامیہ خدمات تک رسائی میں آسانی فراہم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈی سی نے افسران اور اہلکار کو ہدایت کی کہ وہ شکایت کے بروقت ازالے کے لیے ٹائم لائن کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں نمٹائے اور اس کے ساتھ ساتھ خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ تحصیلدار کو ہدایت کی گئی کہ وہ دفتر کے اندرونی حصے اور احاطے کو فیولفٹ کروائیں اور اسے شہری دوست اور خصوصی طور پر معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنائیں۔ جہاں پوری دنیا میں جموں کشمیر اپنی خوبصورتی اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے، وہیں سندھ میں ضلع انتظامیہ بارہمولہ بھی لگاتار کوششیں کر رہی ہے کہ بارہمولہ بھی مختلف مقامات کو ٹورزم کے نقشے پر لایا جائے، اور اس سلسلے میں آج رفیع آباد کے خوبصورت علاقے لودو میں سمر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے شرکت کی۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے کہا کہ بارہمولہ میں سیاحت کے حوالے سے کافی مقامات ایسے ہیں جن کو ہم ٹورزم کے نقشے پر لا سکتے ہیں اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے اسپاٹس ہیں، 20 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جن میں ورجن بیوٹی ہے، انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر دیا ہے اور ہم نے ٹاورس بھی لگائے ہیں، باقی چیزیں پارکس وغیرہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کو اب ٹورسٹ میپ پہ ہم لا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ٹورسٹ ہوں، چاہے انٹر ڈسٹرکٹ ٹورسٹ ہوں، چاہے باہر کے ٹورسٹ ہوں، تاکہ یہاں پہ بھی لوگوں کا جو لائیولیہوڈ ہے وہ انکریز ہو اور لوگ بھی صرف گلمرگ نہ جائیں بلکہ اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ورجن بیوٹی ہے۔ یہاں ہوم اسٹیز کا ہم نے انتظام کیا ہے، یہاں پہ پارکس کا انتظام کیا ہے اور انفراسٹرکچر وائز روڈ وائز بھی یہ ایریا جیسا ابھی لڈورا میں ہی دیکھا بہت اچھے سے ڈیولپ کیا ہے۔ ہمارے پورے بارہمولہ میں ضلع کشتواڑ کے سیاحتی مقامات پر واڈوان فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو 23 اور 24 ستمبر تک جاری رہے گا، جہاں ایک طرف اس فیسٹیول میں ریاست و بیرون ریاست سے سیاح آئیں گے جو ان حسین اور خوبصورت علاقوں کی سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ برفانی کھیلوں کا لطف اٹھائیں گے۔ واڈوان فیسٹیول کے پروگرام کے دوران ایک ایڈونچر کی منزل کے طور پر پیش کیا جائے گا جس میں مقامی کھانوں کے ذائقے، مقامی فنکاروں کی ثقافت پر پرفارمنس، ریج ٹریکنگ اور شاداب جنگلات کے قدرتی ماحول میں کیمپنگ کے ساتھ ساتھ پیش کیا جائے گا۔ کافی سمے سے یہ تیاریاں چل رہی تھیں واڈوان فیسٹیول کو لے کے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بنا کسی گورنمنٹ فنڈنگ کے لوکل ایڈمنسٹریشن نے، وہاں کے ایس ڈی ایم نے مل کے ایک واڈوان فیسٹیول پہلی بار شروع کیا جو کہ بہت ہی اچھے رسپانس کے ساتھ ختم ہوا، اور اس کا رسپانس اور وہاں کے علاقے کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس بار ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم جموں نے یہ پہل اٹھائی کہ وہ واڈوان فیسٹیول کو ایک کیلنڈر فیسٹیول کے روپ میں آرگنائز کریں۔ آپ سبھی کو پتہ ہے لوکل فیسٹیولز میں ہم لوگ اپنے ریسورسز موبلائز کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہر سال کی طرح اس سال بھی شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں قائم نارتھ کیمپس کشمیر یونیورسٹی میں ہارد فیسٹیول
प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर डीन रिसर्च कश्मीर यूनिवर्सिटी इरशाद अहमद ने शिरकत की और उनके अलावा तलबा के साथ साथ दीगर लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतज़िम डॉक्टर अमरीन ने कहा कि हम इस प्रोग्राम को हर साल करते हैं और हमारा मकसद है कि जो हमारे बच्चों में टैलेंट है वो सामने आए ताकि कल को वो पढ़ाई के साथ साथ अपना रोज़गार भी हासिल करने के काबिल बन सकें। उन्होंने कहा कि हम आज के दिन कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ तलबा को मौका फराहम करते हैं ताकि जो इनका हुनर है वो सामने आ सके और मुल्क के साथ साथ कश्मीर का नाम रोशन हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। इट्स अ बिज़नेस कम कल्चरल फेस्ट और हम ये हर साल करते हैं। हमारे बच्चों को अक्सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो उनके बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं वो उनको कहाँ पे एक्सप्रेस करें। सो यहाँ पर हम स्टॉल्स लगवाते हैं या उनको अंदर एक प्लेटफॉर्म देते हैं फॉर देयर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, या किसी का कोई टैलेंट है, कोई कल्चरली कुछ जानता है तो वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएँ। उसके लिए हम ये एक या 2 दिन का फेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 दिन का हारुद फेस्ट किया था, इस बार 1 दिन का किया और इंशाल्लाह हमारा यही है कि हम हर साल वी वांट टू मेक इट एन एनुअल फीचर ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये हर साल होता है। क्लास में मानते ही नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ें, हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं बच्चों को कि आप उन चीज़ों में भी दिलचस्पी दिखाइए जो आपको बहुत पसंद है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा कल्चर है जो खुद ही इतना रिच, इतना वाइब्रेंट है। सो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, रूफ में आगे आए और हमारे यहाँ पर वो आर्टिस्ट भी आए थे, नूर मोहम्मद साहब, एंड आई थिंक एवरीबडी एंजॉयड। सो मुझे लगता है आप सिर्फ अगर एकेडमिक्स तक कन्फाइंड रहते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में, आपके कैंपस में कोई वाइब्रेंसी नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पदगामपुरा अवंतीपुरा में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन से पार्टी के सरकर्दा लीडरान बशमूल सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर, ज़िला सदर पुलवामा GM मीर और दीगर ने खिताब किया। इस दौरान पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने भरपूर शिरकत की। अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि जमहूरियत हम तभी कह सकते हैं जब किसी हिस्से में जमहूरियत के तर्ज अंदाज पर काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक़ नहीं दिया जा रहा है जो जमहूरियत के ऐन बरक्स है। इसलिए मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएं ताकि कश्मीर के लोग भी कहें कि यहाँ जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के दरवाजे हर फ़र्द के लिए खुले रखेगी बशर्ते कि वो फ़र्द मुल्क दहशतगर्दी या मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ ना हो। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामिया का कोई अफराद हो या हुर्रियत का उन्हें बाइकआउट की बजाय मेन स्ट्रीम में आना चाहिए ताकि मिलकर जम्मू कश्मीर की तरक्की को आगे ले जाया जा सके। जमहूरियत सबसे बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क की स्ट्रेंथ जमहूरियत है। जिस वक्त चूंकि ये बाई प्रॉक्सी बीजेपी की सरकार है तो वो तो क्लेम करेंगे बहुत सारी चीज़ें। हम यही कहते हैं कि लोगों को एक पॉपुलर सरकार बनाने का मौका दीजिए, फिर लोग फैसला करेंगे किसको लाएंगे और जिसको भी वो लाएंगे उसका अवलीन फ़र्ज यही होगा कि लोगों की मुश्किलात का अजाला। ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं इनको तो 5 साल पहले रेगुलराइज किया। जमहूरियत डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज ज़िले गांदरबल में शहद की मक्खियों के पालने के मौजू पर 2 रोज़ा ज़िले सतही के सेमिनार का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम ज़राअत की पैदावार और किसानों की फलाह व बहबूद के महकमे गांदरबल ने नेशनल बी एंड हनी मिशन के तहत मुनक़िद किया था और इसमें चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर, एपीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर गांदरबल, मक्खियों के पालने वाले किसान, बेरोज़गार नौजवान और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए डायरेक्टर ज़राअत ने शहद की मक्खियों के पालने की अहमियत को किसानों की मजमूई आमदनी का एक एजाज़ी ज़रिया करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बात हौसला अफजा है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद शहद की मक्खी पालने को आमदनी और रोज़ी रोटी कमाने के लिए एक अहम कारोबार के तौर पर ले रही है। डायरेक्टर ने इलाके के पढ़े लिखे नौजवानों से कहा कि वो आगे आए और शहद की मक्खियों के पालने और दीगर मुताल्लिक़ सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए महकमे के प्रोग्राम और स्कीमों से इस्तिफ़ादा उठाएँ। उन्होंने कहा कि हमागीर ज़राअत की तरक्की के प्रोग्राम के तहत शहद की मक्खियों के पालने के खुसूसी मनसूबे की तरक्की और हुकूमत की तरफ से मंजूरी दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहद की मक्खियों का पालना एक फॉर्म से बाहर की सरगर्मी है जिसमें वसी ज़रई मौसमियाती तनव्वुर की वजह से रोज़गार पैदा करने की सलाहियत है जो साल भर दस्तयाब मक्खियों के पौधों को काबिल बनाती है।
पिछले महीने से एक कैलेंडर बनाया था। आज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है नेशनल बी बोर्ड के तामन के साथ ये 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके बारे में किसानों को अच्छे तरीके से ये जानकारी दी जाएगी कि शहद की मक्खियाँ पालने से हम लोगों को क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं, चाहे वो हम उससे हानी एक्सट्रैक्शन के लिहाज से ले लें, चाहे हानी का जो डायरेक्ट रोल हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में है उसके लिहाज से ले लें, या उससे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हम जो किसान को देना चाहते हैं कि हमारा फार्मर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करे, उसके साथ साथ में एपीकल्चर को हम ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि हमारे किसान की जम्मू कश्मीर के ज़िले डोडा में सूबाई सतह का बैन ज़िला अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। यूथ सर्विसेज एंड डोडा के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा 3 रोज़ा अंडर 19 वॉलीबॉल इवेंट में सूबे जम्मू के 8 अजला की टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रियासी और जम्मू के माबैन खेला गया, जिसमें रियासी ने जम्मू को शिकस्त देकर अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट खिताब अपने नाम किया। फातिह टीम के खिलाड़ियों ने बताया कि वो डोडा की आब हवा और लोगों की हिमायत से काफ़ी मुतासिर हुई हैं। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से उनके लिए मेयारी सहूलियात का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम अजला की टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और रियासी के खिलाड़ियों ने सबसे बेहतर खेल खेलकर फाइनल अपने नाम किया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा जाफर हैदर शेख ने बताया कि उनको लड़कियों के अंडर 14, 17 और अंडर 19 सूबाई सतह के बैन ज़िले वॉलीबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका मिला था। आज कामयाबी के साथ लड़कियों के अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। उन्होंने कहा कि अब रियासती सतह पर जम्मू और श्रीनगर की टीमों का मुकाबला होगा और उन टीमों में कौमी सतह के लिए भी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। शेख ने मज़ीद कहा कि जल्द ही लड़कियों के लिए भी इसी तर्ज पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएंगे। ताहम इन टूर्नामेंट में ज़िला किश्तवाड़ और रामबन की टीमों ने शिरकत नहीं की। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है अंदर से, क्योंकि अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आके खेलना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो तब लगता है जब हम दूसरी टीम से जीतते हैं। काफ़ी अच्छा मिला। यहाँ के जो मतलब कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोच हैं या फिर जितने भी यहाँ पर कोचेज़ हैं, उन्होंने अच्छी हर एक चीज़ प्रोवाइड की। ग्राउंड अच्छी है, हर एक चीज़ अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। नेशनल लेवल पर देखती हूँ कि जब भी हम मतलब कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हम सिलेक्शन होती है, आगे खेलते हैं, आगे जाके हम जब नेशनल खेलते हैं उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नेशनल जब हम खेल लेते हैं, स्टडी 12th क्लियर करने के बाद यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हमें स्पोर्ट्स के साथ 5 नंबर यहाँ दिए जाते हैं और आगे जॉब्स के भी काफ़ी चांसेस मिलते हैं हमें। सर नीलू देवी सर, बड़ी अच्छी, जबकि हम विनर हैं, हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हम विनर हैं और हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आके खेल रहे हैं। सर मैं तो सोचती हूँ पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल, जबकि हम किसी जॉब में फॉर्म लगाएं तो हमारे जो हमें सर्टिफिकेट मिले वो भी हमारे उधर काम आ सकते हैं। बस और भी होनी चाहिए, मैं नहीं बोलती कि नहीं होनी चाहिए, अब तक तो ठीक है जितनी भी सपोर्ट है हमारे साथ। सर मैं ये सोचती हूँ कि हर एक पेरेंट्स को अपनी बच्ची को आगे पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी बच्ची पीछे रहे, कभी भी लड़कियाँ पीछे नहीं हैं, आजकल के ज़माने में आगे हैं, लड़कों से आगे हैं। ये टूर्नामेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से हुआ था। ये हमें अलाट हुआ था, हमारी एक्टिविटीज़ जो होती है साल भर की उसमें अलाटमेंट होती है जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में। ये हमारा शुरू हुआ था 12 को इनकी रिपोर्टिंग थी, 13 से हमारी इनाग्रेशन हुई थी अंडर 14 की गर्ल्स जो राजौरी विनर रही उसमें। फिर अंडर 17 का हुआ जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट विनर रहा। अभी जो कंक्लूजन था आज इसका जो अंडर 19 का फाइनल हुआ ये रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी ने जीता। बहुत मेहनत की थी सब ने। यहाँ से ये बच्चे अभी एक टीम इनकी बनेगी, इनकी सिलेक्शन होगी। इन 10 डिस्ट्रिक्टों में से एक टीम बनेगी जो डिवीज़न खेलेगी और कश्मीर डिवीज़न में ऑलरेडी हो रहे हैं, तो फिर ये 2 टीमें वहाँ से एक टीम बन के ये नेशनल्स के लिए जाएंगे। बानिहाल में महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत 2 रोज़ा जानकारी और ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में शहद की मक्खियों से जुड़े लोगों, किसानों और महकमे के मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर SDM बानिहाल ज़हीर अब्बास, BDC काउंसलर इम्तियाज़ अहमद खांडे, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर अश्विनी कुमार, स्कॉट साइंटिस्ट डॉक्टर
बशीर अहमद, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन, राम गोपाल शर्मा और फौजी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर शहद की मक्खियों और शहद के कारोबार से जुड़े लोगों की तरफ से दरपेश मुश्किलात को वहां मौजूद हुक्काम के नोटिस में लाया गया। इस मौके पर महकमे एग्रीकल्चर के माहिरीन ने शहद की मक्खियों के कारोबार से जुड़े लोगों को जानकारी दी कि वो किस तरह अपने फार्म को साफ सुथरा रखें और कामयाब बनाएं और इससे रोज़गार हासिल करें। सीक्योर का काम करते हैं, उनके लिए रखा था ये कैंप 2 दिन के लिए। वेलकम करते हैं हम इस कैंप में। पहले भी उन्होंने एक प्रोग्राम इसका वेलकम करते, जो भी प्रोग्राम ये बनाते हैं बहुत अच्छे बनाते हैं। मगर एक चीज़ मैं बता दूंगा, इसमें प्रोग्राम तो ये अच्छे बनाते हैं, मगर जो यहाँ के शहद के जो काम करने वाले हैं, जो उनका नुकसान हो जाते हैं, जो उनको मधुमक्खी की पेटी मर जाते हैं, या उनका आज तक किसी को बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ आज डायरेक्टर साहब भी इनका है, मेरे अंदर था, तो चलो हमें मौका नहीं दिया। जिनके जो एग्रीकल्चर की जानिब से यहाँ पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, 2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें है, और यहाँ पर जो इन्होंने टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये कैंप में बहुत सारी जानकारियाँ जो बी कीपर्स को यहाँ पे दी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है जो ये हमें जो GI टैग यहाँ पे इस इंडस्ट्री को मिला है, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन था, जब जिनको कोई दिक्कत आती थी वो इमीडिएटली SSP को फ़ोन करना, वो करना, इनको हैसल फ्री मूवमेंट देते हैं कि पुलिस की तरफ से इनको रुकावट, क्योंकि ये लाइव इंसेक्ट है, ये मर जाता है। बाकी जहाँ तक वो ताल्लुक है आपका, जो इनको इंश्योरेंस नहीं मिलता, इसकी लाइव इसको एंटाइटी के लिए लाइव स्टॉक बनाने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक क्रॉप को मिला है जो रामबन का क्रॉप है, सुलह है। बेशक उसमें जो नाम लिया जा रहा है अल्फला का, बिल्कुल प्राइवेट राइटर है, लेकिन इसका जो फैसिलिटेटर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ही है। इसका एक प्रोसीजर बनेगा, फॉलो बनेगा, उसके बाद ये आगे मार्केट में, ऐसा नहीं कि मिल गया तो हो गया, ऐसा नहीं, इसका एक प्रोसीजर बनेगा, डिपार्टमेंट उसका बना रहा है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और कश्मीर म्यूज़िक क्लब श्रीनगर ने आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीर सूफी और फोक म्यूज़िक फेस्टिवल शीश रंग का इनेकाद किया, जहां मौसीकी की कहकशां सितारों ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सामीन को मसहूर कर दिया। मौसीकी कम्युनिटीज़ और ख़ित्तों के दरमियान एक पुल के उन्वान से एक शीशरंग सकाफती कॉन्फ्रेंस भी पेश की गई। ये इसका उन्वान है बच्चे डॉक्टर तो बच्चे डॉक्टरी। असल में ये कश्मीरी में एक बुक लिखी है जो बच्चे हैं उनकी जो बीमारियां उनके मुतालिक लिखी गई है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और इसमें मैंने 2 पहलू जहन में रखे हैं, एक ये कि डिजीज़ के बारे में एक अवेयरनेस मिले लोगों को, और दूसरा ये कि इसको मैंने एक जो हमारा जो समाज है, तो जो इसका पास्ट है उसको भी मैंने इसमें उसको जोड़ने की, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि इनको कोई किसी ने तावीज़ किया है, कोई या इनको किसी जिन वगैरह का तसर्रुफ़ हुआ है, तो वो। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में मसला कश्मीर उठाया। कहा हिंद पाक के दरमियान बातचीत और ताउन से ही मुनसिफाना और देरपा अमन का होगा क़याम। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 रोज़ से महकमे बिजली के मुस्तकिल व आर्जी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, तनख्वाहें वागुजार करने और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने तहसील ऑफिस राजपुरा का किया दौरा, डिजिटल खिदमात का लिया जायजा। और रफ़ियाबाद के खूबसूरत इलाके लोदो में समर फेस्टिवल का इनेकाद, मेहमान खुसूसी के तौर पर DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने की शिरकत। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।